A very good morning, class. So yesterday we have started the chapter biomolecules. We were doing the chapter biomolecules. So today we are going to discuss about the enzymes. Okay. So there are different kinds of biomolecules present inside the living organisms. Okay, or biomolecules are the molecules or the chemical structures or organic molecules which are present inside the living organisms. Okay, so different kinds of biomolecules are present inside the living cell or in the cytoplasm. For example, carbohydrates. और कौन कौन से हैं? Carbohydrates है, proteins, fats, lipids, amino acids, proteins, nucleic acids, vitamins, minerals, and enzymes. So today we are going to start the topic enzymes. What are enzymes? Enzymes are the basically those proteins which helps to enhance the rate of chemical reactions on inside the living organisms. Okay, so they act as catalyst in the biological world, which increase the rate of reaction. So what are enzymes? What are enzymes, Gitesh? क्या होते हैं enzymes? These are basically proteins. Enzymes are basically proteins whose function is to catalyze biological reactions. Enhance, that means they will increase the rate of reaction. No? और catalyst का main function क्या होता है? To increase the rate of reaction or fastens the reaction. But some catalysts can act as the inhibitors. They can inhibit the reaction or slow down the reaction. Okay. So enzymes are those proteins, basically enzymes are proteins. Okay. Our body express the information in form of proteins. Okay. So those proteins which helps to enhance the rate of reaction or increase the rate of reaction. Okay. Those proteins are known as enzymes. Okay, so enzymes contains protein parts. Sometimes it can also contains the non-proteinaceous part. Okay, or inorganic part. So enzyme can be divided into two categories. Simple enzymes or conjugated. Okay, two main forms of enzymes are simple enzymes and conjugated enzymes. Simple enzymes means simpler protein parts is present. Okay, the enzyme is wholly made up of proteinaceous parts. Okay, सिर्फ एक प्रोटीन पार्ट है इसमें, एक प्रोटीन है जो पूरे का पूरा प्रोटीन जो है वो एंजाइम की तरह एक्ट कर रहा है. ठीक है, दोज एंजाइम्स आर नोन एज सिंपल एंजाइम्स. कॉन्जुगेटेड में क्या होता है? द प्रोटीनेशियस पार्ट इज नॉट एबल टू कैटलाइज द रिएक्शन. ओके, उसे अपने साथ कुछ ना कुछ चाहिए. इट नीड सम काइंड ऑफ इनऑर्गेनिक पार्ट और सम काइंड ऑफ आयंस, ओके, टू फंक्शन प्रॉपरली. So those enzymes are known as conjugated enzymes, जिसमें आपका नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट भी आता है और इनऑर्गेनिक पार्ट, प्रोटीन वाला पार्ट भी आता है. इट कंटेन्स प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट. जो आपका नॉन प्रोटीन पार्ट है विच बाइंड्स विद द प्रोटीनेशियस पार्ट, जो प्रोटीन की चेन के साथ आपका नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच करता है, उसे हम बोलते हैं कोफैक्टर. हाँ, ओके, यहाँ तक क्लियर है? ये जो आपका पार्ट है एंजाइम का, या जो एंजाइम है जो अकेला फंक्शन नहीं कर पा रहा, उसे हम बोलते हैं एपोएंजाइम. ओके, एपोएंजाइम. अब आपके कोफैक्टर्स प्रोटीनेशियस पार्ट भी हो सकते हैं. नॉन कोफैक्टर्स आगे आपके दो काइंड के होते हैं, प्रोटीन पार्ट भी हो सकता है, नॉन प्रोटीन पार्ट भी हो सकता है. ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो ये थे आपके कैटेगरीज ऑफ एंजाइम्स.
So on the basis of different kinds of reaction, they are named differently. Okay, enzymes के main सबसे पहले आप क्या आते हैं features और characteristics of enzyme. Features of enzyme. What are the different features of enzyme? We have studied it already. We have done it in our previous classes, na? And they are very specific in nature. Specific in their action. That means, what is the meaning of this? Specific in their actions. That means they will perform particular kind of function inside the living organisms. Okay. For example, अगर आपका transferase enzyme है, एंजाइम ट्रांसफरेज, सब एंजाइम के बाद पीछे जो आपका प्रीफिक्स है वो एज लगता है, ठीक है. सो ट्रांसफरेज एंजाइम इट्स मेन फंक्शन इज टू ट्रांसफर द डिफरेंट ग्रुप्स. ओके, सो देयर फंक्शन इज टू ट्रांसफर द ग्रुप्स. दे अगर इनका फंक्शन ग्रुप को ट्रांसफर करना है तो ये किसी भी चीज की डिग्रेडेशन नहीं करवाएंगे, ये डाइजेशन में हेल्प नहीं करेंगे. दे विल ओनली हेल्पफुल इन द ट्रांसफरिंग ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रुप इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, next is the temperature sensitive, pH sensitive. Okay, they are temperature sensitive. Any kind of increase or decrease in the temperature can slow down the activity of enzymes. Okay, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तब भी उसकी एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है, अगर उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है तब भी उसकी जो एक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो जाती है. टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो उसे प्रॉपरली एनर्जी नहीं मिलेगी, सफिशिएंट एनर्जी अमाउंट प्रेजेंट नहीं होगा, सो दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म द देयर फंक्शन प्रॉपरली. अगर टेम्परेचर इफ देयर इज इंक्रीज इन द टेम्परेचर बियॉन्ड देयर रेंज तो क्या होगा, देयर इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, तो उनके स्ट्रक्चर की डीनेचुरेशन स्टार्ट हो जाएगी. व्हाट इज डीनेचुरेशन? Denaturation means we know enzymes are actually, what are enzymes? They are basically proteins. Okay, or the protein chain or the polypeptide chain folded to form the enzymes or a particular kind of protein. Okay, so क्या होगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो इनका जो फोल्डिंग स्ट्रक्चर है वो स्टेबल नहीं होगा, जो बॉन्ड्स होंगी वो ब्रेक डाउन कर जाएंगी और आपका ये जो स्ट्रक्चर है वो ही खराब हो जाएगा. ठीक है, सो इट विल नॉट बी एबल टू फंक्शन प्रॉपरली बिकॉज इसका स्ट्रक्चर जो है देयर इज डिग्रेडेशन ऑफ देयर डिग्रेडेशन ऑफ बॉन्ड्स. ओके, हाँ, so this process or this degradation of bonds of the protein is not due to the increase in temperature is known as the denaturation of proteins. Okay, so they are basically temperature sensitive. That means increase or decrease in the temperature can cause or affect the activity of the enzymes. Okay, तो हम experiment भी करते हैं class में. For example, आपका salivary amylase है. हाँ, इनएक्टिव होगा, दैट मीन्स वो एक्टिविटी शो ही नहीं करेगा, रिएक्शन करेगा ही नहीं. ठीक है, खुद ही इनएक्टिव हो गया तो रिएक्शन कहाँ से फासन अप करेगा. ओके, हाँ जी, मतलब प्रॉपर रेंज का टेम्परेचर अगर उसका फॉर एग्जाम्पल आपका सलाइवरी अमाइलेज है, ठीक है, तो ये 38 डिग्री नियर अबाउट 37 डिग्री और 38 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर जो है बॉडी का उतना रेंज में होने चाहिए इसका टेम्परेचर. ठीक है, अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं या फिर डिक्रीज कर देते हैं तो हम क्या देखेंगे, ये स्टार्च को डिग्रेड ही नहीं करेगा. What is the function of salivary amylase? To degrade starch in the mouth, no? Breakdown of starch into the lower carbohydrate or glucose molecules. Okay, तो हम क्या देखेंगे कि salivary amylase अपना function ही perform नहीं करेगा. Okay. In the similar way, they are sensitive to pH. अगर आपकी pH की रेंज कम हो जाती है या हाई हो जाती है, ठीक है, for example, salivary amylase functions properly at 6.8 pH. Okay,
तो इसके लिए अगर आपकी पीएच लो चली जाती है, 6.2 हो जाती है या 5 पॉइंट एसिडिक कंडीशंस आ जाती हैं ज्यादा, तो ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। ठीक है, सिमिलर वे में अगर आपकी पीएच की जो रेंज है वो इंक्रीज हो जाती है, बेसिक कंडीशंस में चले जाते हो, न्यूट्रल में चले जाते हो, फॉर एग्जांपल 7.2 हो गई है या 7.8 हो गया है, इट विल नॉट फंक्शन प्रॉपरली बिकॉज इट इज पीएच सेंसिटिव। ठीक है, ये नहीं है कि उसकी आपको फंक्शनिंग खत्म हो जाएगी, बट आपका रिएक्शन बहुत स्लोली होगा। ठीक है, अगर आपका रिएक्शन प्रॉपर वे में, यू वांट योर रिएक्शन टू बी इन अ प्रॉपर वे, सो आपका टेम्परेचर रेंज और पीएच रेंज जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। सो हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या 37 डिग्री सेल्सियस के करीब ही होता है। हाँ, तो इतना ही होता है रेंज। तो हमारे में क्या होता है, जो स्टार्च की डाइजेशन है वो प्रॉपरली हो रही होती है माउथ में, salivary amylase present है, so it functions properly at the proper temperature or the pH. अगली characteristics क्या है? What are the next characteristic of the enzyme? Yes, it depends on the concentration of substrate and products. That means, for example, if the salivary amylase has to degrade the starch, so we need starch. Okay, we need starch to observe the activity of the enzyme. हमारे पास स्टार्च होगा तभी हम salivary amylase की एक्टिविटी को स्टडी कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं। We need a certain kind of substrate because reactants पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में, reactants in the same way आपके substrate, अगर substrate होगा तभी एंजाइम जो है वो रिएक्ट कर पाएगा, बिकॉज एंजाइम नीड सबस्ट्रेट टू एक्ट। एंजाइम विल एक्ट ऑन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। ओके, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ अगर सलाइवरी अमाइलेज की रिएक्शन ले रहे हैं तो स्टार्च एक्ट्स एज सबस्ट्रेट फॉर द सलाइवरी अमाइलेज। ओके, सलाइवरी अमाइलेज जो है दैट विल रिएक्ट विद द स्टार्च और इट विल डिग्रेड द स्टार्च टू द ग्लूकोज और लोअर मॉलिक्यूल्स। ओके, सो डिपेंड करता है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आपका कितना है सबस्ट्रेट। If your substrate is present in very low concentration, that it can affect the activity of enzymes. Okay, proper concentration होगी जितना लेवल हमें चाहिए तभी आपका एंजाइम प्रॉपरली आपको एक्टिविटी शो करेगा। ओके, अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन ही कम है सबस्ट्रेट की, देन इट विल स्लो डाउन द प्रोसेस और इट विल स्लो डाउन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। वेट, हाँ जी, हाँ तो बता रही हूँ वो भी। ठीक है, इनहिबिशन मींस मान लो कोई एंजाइम कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, बॉडी में क्या होता है, साइड बाय साइड एनाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं, कैटाबॉलिक में क्या होगा, स्टार्च को डिग्रेड कर दिया उसने, स्टार्च इज डिग्रेडेड इनटू लोअर मॉलिक्यूल्स। सो ये कौन सी एग्जांपल है, दिस इज अ काइंड ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शंस, है ना। सेम वे में एनाबॉलिक रिएक्शंस हो रही होती हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा, कुछ मॉलिक्यूल्स ज्वाइन करेंगे एंड दे विल फॉर्म द स्टार्च। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स विल ज्वाइन टू फॉर्म द ग्लाइकोजन। ठीक है, ये एनाबॉलिक का चलो एग्जांपल है। ठीक है, अब अगर कोई चीज हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रही है जितना उसे सफिशिएंट लेवल चाहिए प्रोड्यूस करने के लिए, फॉर एग्जांपल ट्रिप्टोफैन है, स्टार्टिंग में ट्रिप्टोफैन नहीं है, ट्रिप्टोफैन बॉडी के अंदर बन रहा है, हमें जितना इसका लेवल चाहिए था उतना बन गया। अमाइनो एसिड है ट्रिप्टोफैन, जितना लेवल हमें चाहिए था उतना इसका प्रोड्यूस हो गया, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली इट विल, दिस ट्रिप्टोफैन विल एक्ट एज इनहिबिटर। ये क्या करेगा, प्रोसेस को बंद करवा देगा, बिकॉज बॉडी को जितनी नीड है उतना ही उसने फंक्शन करना है। ठीक है, so the molecules which are produced as the reaction of the enzyme, they itself act as inhibitor sometime. Okay, in the same way product, अगर अब substrate के साथ enzyme reaction हो रहा है तो they are enzyme will react with the substrate to form the products. ठीक है, साइड बाय साइड क्या हो रहा है, आपका रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में गो ऑन हो रहा है, स्टार्च से अगर आपका, फॉर एग्जांपल दिस इज स्टार्च, enzyme degrades starch into the glucose. ठीक है,
अगर हम अपना प्रोडक्ट जो है वहां से कलेक्ट नहीं करते, अगर ये ग्लूकोज यूज नहीं हो रही है बॉडी में, तो आपका एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी, वो कम हो जाएगी ऑलरेडी, ठीक है, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे भी आपका डिपेंड करता है एंजाइम की एक्टिविटी, ठीक है। अगर ग्लूकोज बॉडी में कहीं यूज ही नहीं हो रहा तो वो क्यों प्रोड्यूस करेगा, कि बिकॉज एक लेवल तो आ गया, बॉडी को ग्लूकोज चाहिए, वी नीड ग्लूकोज। हमारे में क्या ग्लाइकोजन से, मान लो हमारी स्ट्रेस कंडीशन हुई, ग्लाइकोजन है, ओके। इन केस ऑफ एनिमल्स ग्लूकोज इज स्टोर्ड इनसाइड द लिवर इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। ड्यूरिंग द स्ट्रेस कंडीशंस वी नीड ग्लूकोज, ओके। तो क्या हुआ, डिफरेंट एंजाइम्स विल एक्ट ऑन दिस ग्लाइकोजन एंड दे विल फॉर्म ग्लूकोज फ्रॉम द ग्लाइकोजन, ये होगा। अगर ये ग्लूकोज जो है वो बॉडी में यूज ही नहीं हो रहा, एटीपी बन ही नहीं रही है, तो ग्लाइकोजन क्यों डिग्रेड होगा, अगर बॉडी को ग्लूकोज का नीड है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, तो ग्लाइकोजन पे एक्शन नहीं होगा। दैट मीन्स जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है आपकी एंजाइम की एक्टिविटी, ओके। दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है दैट अफेक्ट्स द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। क्लियर है ये वाला पॉइंट? और लास्ट है आपका, at the end of the reaction enzyme remains unchanged or ineffective, okay। जब आपका पूरा रिएक्शन हो जाता है, आपको ऐसे ही आप एंजाइम कलेक्ट हो जाता है, ठीक है, एंजाइम रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, ओके। उसका सिर्फ काम क्या है, टू एनहांस द रिएक्शन, ठीक है, वो कोई भी चेंजेस अंडरगो नहीं करता ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है। चेंज क्या होता है, सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम, बट एंजाइम में कोई चेंज नहीं आता, उसका सिर्फ काम क्या है, टू प्रोवाइड सरफेस एरिया और टू हेल्प इन द एक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन और टू हेल्प इन द एनहांसिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन, ओके। वो एक सरफेस, कभी कभी एंजाइम क्या होता है, एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं सो दैट की रिएक्शन हो सके, ठीक है। So which part of the enzyme is active during any kind of reaction? The whole enzyme is, हाँ, तो एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वहां पे आके आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ सबस्ट्रेट्स बाइंड करेंगे, ओके। सो नेक्स्ट इज योर लॉक एंड की हाइपोथेसिस। What is lock and key hypothesis? It's basically a hypothesis to show the activity of enzymes, okay. This process is to show the activity of the enzymes, okay। तो इसमें क्या बोला था, एंजाइम्स की एक पर्टिकुलर साइट है और उस साइट की पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। दे विल बाइंड टू ओनली स्पेसिफिक substrate which have complementary shape or complementary configuration according to that enzymes, okay। For example, if this is your enzyme E, then this will bind to the, this is your substrate, या ये सबस्ट्रेट मान लो चाहे ये एंजाइम मान लो, ठीक है। दिस इज योर एंजाइम, okay, and this is your substrate on which enzyme has to act. Then enzyme will join with the substrate to form the enzyme substrate complex, okay। This is your ES complex, enzyme substrate complex। अब इन्होंने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना दिया, दे आर बाइंडिंग टू ईच अदर, ठीक है, दे आर इन एसोसिएशन विद ईच अदर। नाउ एंजाइम विल एक्ट ऑन द सबस्ट्रेट और इट विल कन्वर्ट दिस इलेक्ट्रॉन सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इनटू द इलेक्ट्रॉन, oh sorry, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, है ना। तो मान लो अब प्रोडक्ट की जो है, ठीक है, ईपी बन गया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब जो नया प्रोडक्ट होगा वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री शेप का नहीं होगा एंजाइम के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, उनकी अफिनिटी कम होगी थोड़ी सी,
and this product will released from the product will be dissociate from the enzyme. तो क्या आपको लास्ट में एंजाइम एज इट इज ही मिल जाएगा एंड देयर इज योर जो भी आपका प्रोडक्ट बन गया. ओके, so this is your lock and key hypothesis. In first step, enzyme will bind with the substrate molecules and they will form the enzyme substrate complex. After the formation of enzyme substrate complex, different kind of interactions or reactions will take place and they will form the EP complex. EP complex is not a stable complex because the shape or the affinity of the product is not similar to the substrate. ये आपका नया प्रोडक्ट बना है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी डिफरेंट होगी और मे बी इसका अफिनिटी भी एंजाइम के साथ उतनी नहीं होगी जितनी आपकी सबस्ट्रेट की है. ओके, सो ड्यू टू द अनस्टेबिलिटी और द हाई एनर्जी लेवल ये क्या करेगा, it will be dissociated into the enzyme and the product molecules, or from here we can collect our product and the enzyme जो है वो हमें as it is unchanged enzyme जो है वो लास्ट में हमें मिल जाता है. ठीक है, so this is your lock and key hypothesis. So next I think आपका है induced fits theory. हाँ जी, what are you saying? हाँ बता रही वो आ गया, मैं आ जाएगा, बता देती हूँ. नेक्स्ट है आपका इंड्यूस्ड फिट थ्योरी. इंड्यूस्ड फिट में क्या होता है बता रही हूँ ना मैं. ठीक है, इंड्यूस्ड फिट में क्या होता है, अगर आपका ये एंजाइम है, ठीक है, ये आपका एंजाइम है और आपका ये सबस्ट्रेट है, कोई भी शेप बना लो, ठीक है, ये आपका सबस्ट्रेट है. अब एंजाइम की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, सबस्ट्रेट की डिफरेंट है. ठीक है, यहाँ पे क्या होंगी, थोड़ी बाइंडिंग साइट्स होंगी. यहाँ पे है ए, ये आपका एंजाइम है. अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू द सबस्ट्रेट. सो समटाइम्स क्या होता है, बट हमें रिएक्शन चाहिए बॉडी को. हाँ, बाइंडिंग साइट एक्टिव साइट इज द सेम थिंग. ओके, बिकॉज सबस्ट्रेट विल बाइंड टू द एक्टिव साइट ना. ठीक है, तो समटाइम्स क्या होता है, अगर बॉडी को अनफेवरेबल कंडीशंस है, बॉडी को जरूरत है, तो क्या होगा, it will bind to the enzyme and this enzyme after binding will undergo configurational changes. ठीक है, जब एक बार आपका सबस्ट्रेट इसके साथ कांटेक्ट में आ जाता है, इसके साथ बाइंड करने की कोशिश करता है, तो उसके कॉन्फॉर्मेशन में अकॉर्डिंगली खुद ही चेंजेस आ जाते हैं. ठीक है, दैट मीन्स ये क्या करेगा, इसे इंड्यूस करेगा ना. It is stimulating this, inducing this to change its configuration so that this substrate can fit to this. ठीक है, ये इसे इंड्यूस करता है कि इसमें चेंजेस आए और ये खुद इसमें फिट हो सके. सो दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज इंड्यूस्ड फिट थ्योरी. तो होगा क्या, ये अगर आपका एंजाइम था तो अकॉर्डिंगली उसमें चेंजेस आ जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके ए बी थे, बाइंडिंग साइड्स थी, दे विल बाइंड टू ईच अदर. ओके, हाँ, पिछले में क्या था, सबस्ट्रेट के जैसा एंजाइम है दैट विल बाइंड टू द स्पेसिफिक सबस्ट्रेट. बट अब बॉडी में बहुत कुछ चलता रहता है, ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन कुछ भी हो सकता है. ठीक है, वो कंडीशंस में रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है. अब बॉडी को जरूरत होती तभी तो वो डिफरेंट डिफरेंट चीज से कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा है ना. फॉर एग्जाम्पल, बॉडी में ग्लूकोज की कमी है, ठीक है, ग्लाइकोजन भी, या तो वो ग्लाइकोजन को यूज करेगा या फिर जो भी लिपिड्स हैं, फैट्स हैं, उन सबको यूज करेगा. दिस डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी ना. तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, अगर हमें रिएक्शन की जरूरत है तो सबस्ट्रेट कैन बाइंड टू दिस, है ना, एंड इट विल अंडरगो द कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस टू फिट द सबस्ट्रेट इनसाइड द एक्टिव साइट. ओके, यहाँ पे आपका ES कॉम्प्लेक्स बन गया.
ऑब्वियसली ये क्या करेगा, ई पी कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंजाइम विल डिसोशिएट फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड वी कैन कलेक्ट द प्रोडक्ट. ओके, यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम है, देन यू कैन आस्क मी बाय रेजिंग योर हैंड्स. मे आई कंटिन्यू? हाँ जी कर रहे हैं बोले. क्या बोल रहे थे आप? हाँ जी. What are inhibitors? What are activators? अब enzyme can act as inhibitors and activators. बच्चे वहीं तक आ जाएंगे. ओके, पहले ये तो बताओ what are inhibitors? हाँ, enzyme can act as activators or can act as inhibitors too. Okay, which enhance the reaction, they can act as activators, or which slow down the process, any process inside the living cell, they act as inhibitors. Wait. So your enzymes can act as activators and inhibitors too. So enzyme, what is the main functioning or the basic purpose of the enzyme? Enzymes क्या करते हैं? They reduce the activation energy. For example, these are your reactants. So your reactants are, the main purpose of enzyme is to convert reactants or the substrate into the desired products. These are your products. Okay, so this is your activation energy required for the reaction. Okay, this is your EA or activation energy. देख रहे हो, ग्राफ है बुक में, ठीक है. तो this is your activation energy required for a reaction to undergo or to form the products. Okay, तो enzymes क्या करते हैं? This is your normal reaction without the enzymes. अगर एंजाइम होगा वो क्या करेगा? वो आपका रिएक्शन को, आपकी जो रिएक्शन की एक्टिविटी है उसे कम कर देगा. ओके, तो एंजाइम विल रिड्यूस और लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी. अब सिर्फ इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए. सो जो रिएक्शन हाई एनर्जी लेवल पे होना था वो अब लो एनर्जी लेवल पे हो सकता है. सो बॉडी नीड्स लो अमाउंट ऑफ एनर्जी टू परफॉर्म अ रिएक्शन or to undergo any kind of changes or to form the products from the substrates. Okay, so in this way enzymes react or act inside the living organisms. Okay, so there are different kinds of enzymes, different classes of enzymes. For example, oxidoreductases. Oxidoreductases means which can control the oxidation and the reduction reactions, or which maintains the flow of electrons. Okay, so we will start from here tomorrow. Okay, so class, this is all for today. Thank you, class.